Hello everyone. Now let's start Unit 3, the next chapter, that is fourth chapter, and that is about the gender. It is very important कि आप gender का मतलब जानते हो. Gender means male, female, boys and girls, and there is one more gender recognized in our Indian Constitution, that is transgender. ठीक है, तो इस बुक में आपको बॉयज एंड गर्ल्स जेंडर के बारे में बताया गया है. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. Gender is a term that you may often have heard. सुना होगा आपने. It is a term, however, that is not easily understood. It tends to remain distant from our lives and restricted to discussion during training programs. In fact, it is something that all of us experience in our life on a daily basis. ठीक है, हमें डेफिनेटली क्लास में, जॉब्स में, हर जगह जेंडर, हर एक फॉर्म में जेंडर जरूर लिखा होता है. It determines, for example, who we are and what we will become, where we can go and where not, the life choices available to us and those we eventually make. Our understanding of gender is often based on the family and society that we live in. This leads us to think that the roles we see men and women around us play are fixed and natural. In fact, these roles differ across communities around the world. By gender, that then we mean the many social values and stereotypes of a cultural attached to the biological distinction male and फीमेल. वही जो मैंने आपको बताया, ऐसे ये बायोलॉजिकल डिफरेंस जो है मेल एंड फीमेल का, ये जो दो जेंडर है, इनको हर जगह रिकॉग्नाइज किया जाता है. आप जनरल ऐसी कॉमन प्लेसेस पे जाते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल रेलवे की टिकट लेने जाते हैं, मेल्स की लाइन अलग होती है, फीमेल्स की अलग होती है. आप मॉल्स में जाते हैं, कुछ वॉशरूम जाते हैं, वहां पे भी आपने नोटिस किया होगा. तो इवन किसी स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, उनकी एक रिजर्व सीट्स होती हैं. ठीक है, तो ये जेंडर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखता है. द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स, जिसमें जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर विदाउट एक्चुअली यूजिंग द टर्म. ठीक है, इंस्टीड दो डिफरेंट pedagogic tools like case studies, stories, classrooms activities, data analysis and photography. Students are encouraged to question and think about their own lives and society around them. Gender is often mistakenly thought to be something that concerns women or girls alone. ठीक है, जेंडर का मतलब सिर्फ वुमेन या गर्ल से नहीं होता है. द केयर हैज बीन टेकन इन दीज 2 चैप्टर्स जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें बॉयज को भी एक जेंडर की तरह बताया गया है और इस पर डिस्कशन किया गया. देखिए चैप्टर 4 और चैप्टर 5. ठीक है, इसके गो थ्रू होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम चैप्टर 4 के बेसिक्स को समझें. चैप्टर 4 में दिया है ग्रोइंग अप एज एन बॉयज एंड गर्ल्स. What is the difference? देखिए, being a boy or a girl is an important part of one's identity. आपकी आइडेंटिटी क्या है? कोई आपका नाम पूछता है तो आप अपना नाम बताते हो. That is only your identity as a boy or a girl. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. But do all societies look at boys and girls in the same way? क्या ऐसा होता है कि हर सोसाइटी में बॉयज एंड गर्ल्स को सेम समझा जाता है? We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepares them for their future role as men and women. We will learn that most societies value men and women differently. ठीक है, हर सोसाइटी में, हर फैमिली में अलग अलग वैल्यू होती है और अलग अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है. द रोल वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर अनयूजुअली वैल्यूड लेस देन द रोल मेन प्ले एंड द वर्क दे डू, ऐसा माना जाता है. This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, किसी भी बॉय गर्ल मेल फीमेल, किसी एक के काम को ही बहुत ज्यादा वैल्यू देना इज नॉट गुड. फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, आपके घर में यदि कहा जाए कि आपके पापा ज्यादा काम करते हैं, आपकी मम्मा हाउसवाइफ हैं, वो इतना होल्ड नहीं करती हैं, तो ये गलत बात है. क्योंकि जब मम्मा घर का काम करती है, पापा यदि वो पैसे नहीं लाएंगे, वो मैनेज नहीं करेंगे, तो वो काम कैसे होगा? ये उतना ही सही है जितना उन पैसों को लाने की इम्पोर्टेंस तभी है जबकि मम्मा उनको मैनेज करती है.
आपको एजुकेशन दिलाती है, आपके स्कूल डिसाइड करती है, आपकी अपब्रिंगिंग डिसाइड करती है, आपकी फ्रेंड सर्किल और आपके घर में आपके आप बच्चों के साथ आपकी मम्मा का जो बैलेंस है वो एक फैमिली मेकिंग एक मदर करती है। इसी तरह से हम यहाँ नहीं कह सकते कि फादर और मदर दोनों में से कोई एक ही सिर्फ फैमिली बनाने में हेल्प करता है, नहीं, ये दोनों उतने ही पार्टिसिपेंट हैं जितने कि आप बच्चे हो। आप भी एक फैमिली फॉर्म करते हो, आपका बिहेवियर, आपकी स्टडीज, ठीक है। तो यही डिफरेंस बताया गया है कि कोई भी हम किसी एक को वैल्यू नहीं कर सकते किसी भी जगह, चाहे वो घर हो, फैमिली हो, स्कूल हो, क्लासरूम हो, वर्क प्लेस हो, आप वर्क जहाँ पे ऑफिस में काम होते हैं, या स्कूल में टीचर्स हो, किसी भी एक जेंडर को बहुत वैल्यू नहीं दी जा सकती। नाउ लेट्स गो थ्रू ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s। एक आपको एग्जांपल दिया गया है, देखिए, द समवन आइलैंड आर पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द साउथ पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन के साउथ में ये आइलैंड है। इन द 1920s, अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन Samoan societies, children did not go to school. They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. Fishing was a very important activity on the islands. Young people therefore learned to undertake long fishing expeditions, but they learned these things at different points in their childhood. ठीक है, as soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. उनको कोई भी नहीं देखता था, ठीक है। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 year old took over their responsibility. Both boys and girls looked after their younger siblings, but by the time of a boy was about 9 years old, he joined the above older boy in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Girls had to continue looking after small children or do errand for adults till they were teenagers. But once they became teenagers, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips. ये एक आपको सैमन सोसाइटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। Worked in plantation, learned how to weave baskets. Cooking was done in a special cooking house where boys were supposed to do most of the work while girls helped with their preparations. ठीक है, तो आपको एक जस्ट एग्जांपल देके बताया गया है कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का क्या रोल था सैमन सोसाइटी के एटमॉस्फेयर के डेवलपमेंट में। देखिए, अ क्लास 7th सैमन चाइल्ड इन हिज स्कूल यूनिफॉर्म, वो स्कूल जाने के लिए रेडी है, ठीक है। इन व्हाट वे डू द एक्सपीरियंसेस ऑफ सैमन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स डिफरेंट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है। देखिए, आपको डिफरेंस फील कर रहे होंगे, आपके पेरेंट्स ने आपको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। कुछ ही होंगे जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी अपने छोटे भाई बहनों की या अपने पेरेंट्स की किसी पर्टिकुलर काम में हेल्प करने की। पर इस सोसाइटी में हमने क्या देखा, द चिल्ड्रन आर, चाहे वो छोटे बच्चे थे, व्हेन दे ग्रो अप एज टीनेजर्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ स्टैंड किया और अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, ठीक है। नाउ देखिए, ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s, वो आपको 1920s का एग्जांपल दिया गया था। 1960s में क्या होता है, देखिए, मध्य प्रदेश में द फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960s, ठीक है। क्या होता है, फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। क्लास 6 तक तो वो सेम स्कूल में जाते हैं, क्लास 6 के बाद वो अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइंड very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from outside world, ठीक है। गर्ल्स स्कूल में ज्यादा सेफ्टी रखी गई है। The boys' school had no such courtyard, उसमें किसी भी courtyard की जरूरत नहीं थी। And our playground was just a big space attached to the school. Every evening, once the school was over, the boys watched hundreds of school girls crowded and narrow street. As these girls walked on the street, they looked so purposefully. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around, idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in group, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. ठीक है, ये आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों जेंडर में, ठीक है, उनकी फ्रीडम में और सब चीजों में कितना डिफरेंस है,
ठीक है। We often, after reading the two examples जो हमने पढ़े 1920s के सैमन विलेज के, 1960s के मध्य प्रदेश के, देखिए क्या होता है। Above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experiences. If we talk to elder in our family, we will see that their childhood were probably very different from others, ours. बात करिए अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, आपको खुद पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है उनके डेवलपमेंट में और आपके डेवलपमेंट में, ठीक है। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. दिस बिगिन फ्रॉम अ वेरी यंग एज. वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद. देखिए बॉयज को कैसे टॉयज मिलते हैं एंड गर्ल्स को कैसे. बॉयज टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद. Why are girls then given toys and boys car? ऐसा क्यों होता है? Toys become a way of telling children that they will have different future when they become a man or a woman. ये उनको इसलिए दिया जाता है. If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday thing. हम डेली लाइफ में इस डिफरेंस को फील करेंगे. How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly and boys need to be tough. All these are ways of telling children that they have a specific role to play when they grow up to be men and women. ये हमारी सोसाइटी पहले से सिखाती है बच्चों को. छोटे बच्चे होते हैं जब बॉयज एंड गर्ल्स, आप खुद अपना लाइफ में एग्जाम्पल देखिए. जब आप बात करते हो आपको आगे रखा जाता है. गर्ल्स को सॉफ्टली बोलने के लिए आपके पेरेंट्स कहते होंगे स्पीक सॉफ्ट एंड स्लो, पर बॉयज को स्पीक हार्ड, स्पीक लाउड, ठीक है. लेटर इन लाइफ दिस इफेक्ट्स द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी और करियर वी कैन चूज. इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग आवर ओन, हमारी खुद की सोसाइटी में भी द रोल मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली. दोनों की सेम वैल्यू नहीं है. Men and women do not have the same status. Let us look at how this difference exists in the work done by men and women. चलिए देखते हैं कैसे डिफरेंस है. देखिए माई मदर डज नॉट वर्क, काम बाहर नहीं करती है. माँ, वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल एक्सकर्शन. रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर. कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर. अपनी मामा से ये पूछती है, ठीक है. Hermes mother always comes for excursion because she does not work, क्योंकि वो काम नहीं करती हैं, ठीक है. Sonali, how can you say that you know that Jaspreet's auntie is up at 5 a.m. every day doing all the household work. 5 बजे उठ जाती हैं, उसकी मामा सारे काम करती हैं. Yes, but that's not real work. It's just housework. ठीक है. देखिए यहाँ पे आपको क्या डिस्कशन में लग रहा है कि हाउसवर्क को कोई काम नहीं समझा जा रहा है. ओ that's what you think, do you? Let's go over to these houses and ask Jaspreet what she thinks. ठीक है. देखिए क्या होता है at the Singh's house. Sharan Sonali thinks that your wife is not a working person. हंसते हैं ये, हाँ, but it's not that correct auntie. My mother is a housewife. She does not work. क्या बोलते हैं वो. Then Jaspreet, why don't you just relax and let them manage everything for the change? Great idea. Okay, I'll go on a strike tomorrow. बोलती है वो, ठीक है. What fun. We will take care of everything tomorrow with पापा. बच्चे खुश हो जाते हैं, पापा का सारे काम करेंगे, मम्मा को नहीं करना है तो उनको स्ट्राइक करने दो एक दिन. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है. Oh God, look at the time. Where is my breakfast? What? Why aren't the children ready? बच्चे क्यों नहीं तैयार हुए अभी तक? How would I know? I am on a strike. Remember? ये बोलती हैं तो स्ट्राइक पे, मुझे नहीं पता बच्चे क्यों नहीं रेडी हैं, आपका ब्रेकफास्ट कहाँ है. I have taken leave today. Oh, that's the school bus. I'll have to drop them in the car. वो स्कूल बस तो भाग गई. इनके फादर कहते हैं अब तो मुझे कार से बच्चों को छोड़ना पड़ेगा. Hurry up and ask Hermes to switch on the pump. पानी का पंप भी बंद है. फिर क्या होता है. But what about the kids lunch box? Oh no, forget about that. ठीक है. उसको भूल जाते हैं क्योंकि वो तो तैयार ही नहीं है. I'll give you some money. Just buy something from the canteen today. माँ already gave us money for that. बच्चे कहते हैं हमारे पास तो पैसे हैं. Ding ding. There's someone. I'm exhausted. How about some tea? Oh, I forgot. You strike. I'll make some tea. I will make some myself. हस्बैंड कहता है शाम को आता है, कहता कोई नहीं मैं खुद बना लूंगा, तुम तो स्ट्राइक पे हो. The house looks
like it was hit by a hurricane. एक तूफान आया. Hurricane is a famous you can called storm in America. तो उसका नाम हरिकेन है, यही कहते हैं. कैसा लग रहा है यहाँ पे तूफान आया है. Did you expect it to remain in exactly the some condition in which you let it in this the morning, dear Hermit? Where on earth are the tea leaves? He. I wonder if they still believe in I don't work. And now I have to remind them that Chacha ji and Chachi ji are coming for dinner. ये इनको बताती हैं. अब क्या होता है देखिए, वैल्यूइंग हाउस वर्क. ये आपको एग्जांपल इससे दिया गया कि हमें हाउस वर्क करने वाले लोगों को भी वैल्यू उतनी ही देनी चाहिए. Hermes family did not think that the work just breathe. उनकी मम्मा घर पे करती थी. Did within the house was real work. This feeling is not unique to their family. Across the world, पूरी दुनिया में, the main responsibility for the housework and the caregiving task like looking after the family, especially children, the elders and the sick members, lies with women. ये सब काम घर की औरतें क्यों करती हैं? कोई घर में बीमार पड़ा, किसी को खाना देना हुआ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाउस मेंटेनेंस, क्लीनिंग, ये काम औरतों का ही क्यों है? और सबसे बड़ी बात ये कि माना जाता है कि ये कोई काम ही नहीं है. Yet, as we have seen, the work that women do within their home is not recognized as work. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for, and society devaluates this work. माना जाता है कि ये काम तो उन्हें करना ही है, ये कोई काम थोड़ी है, ये तो उनका काम बना ही हुआ है. ठीक है. लिव लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स. जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनकी लाइफ के बारे में हम देखते हैं. इन द स्टोरी अबाउट हर्मीस मदर वाज नॉट द ओनली हु डिड द हाउस वर्क. A lot of the work was done by Mangala, their domestic helpers, जो कि इनके डोमेस्टिकली हेल्प करती है, इनके घर पे काम करती है. सेम रिकॉग्निशन उसकी भी के काम को मिलती है. ठीक है. देखिए, their domestic helpers. Many homes, particularly in towns and cities, employs domestic workers. They do a lot of work, sweeping and cleaning, washing clothes and dishes. कपड़े भी धोती है, dishes भी धोती है, and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. Most domestic workers are women. Sometimes every young boy or girl are as employed to do the work. Wages are low, बहुत कम पैसे मिलते हैं. As domestic work does not have much value, a domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning. 5 बजे वो उठ जाते हैं and at the late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect. This is what Mangala, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. My first job was with a rich family that lived in the 3-storied house. The Mem Sahib was very strange, as she would shout to get any work done. My work was in the kitchen. There were two other girls who did the cleaning, and our day would begin at 5 o'clock. ये सब कहते हैं कि हमारा काम रोज सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है. ठीक है. और फिर क्या होता है? 5 o'clock. My first job was with a rich family. ये अपने एक्सपीरियंस बताती हैं कि क्या होता है. ठीक है. देखिए यहाँ से For breakfast, we would get a cup of tea and 2 dry rotis. We could never get a third roti. In the evening, when I cooked the food, the 2 other girls would beg to me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. We were so hungry after working throughout the day. We could not wear chappals in the house. हम घर के अंदर चप्पल पहन के भी नहीं आ सकते हैं. In the winter, our feet would swell up with the cold. Used to feel scared of the Mem Sahib, but also felt angry and humiliated. Did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? ठीक है. देखिए, ये इतना काम करके क्या फील करती हैं कि इनको कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है. ये एक बहुत ही बुरी बात है. दे मस्ट बी रेस्पेक्टेड. पूरा घर संभाल रही है. इनफैक्ट व्हाट वी commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work in both rural and urban areas. Women and girls have to fetch water. पानी तक निकालना पड़ता है. In rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewood. Tasks like
Washing clothes, cleaning and sweeping and picking up loads require bending, lifting and carrying. Many chores like cooking involve standing for long hours in the front of hot stoves. ये कितना बड़ा काम है, सोचिए कितने देर खड़े रहना पड़ता है इस काम के लिए, ठीक है ना. Many chores like cooking involves the work women do is strenuous and physically demanding. Words that we normally associate with men, जो काम men करते हैं. Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. पूरा दिन ये काम करना पड़ता है, ये काम ऐसा है कि खत्म ही नहीं होता. इनफैक्ट वी एड अप द हाउस. आपने कभी अपनी मम्मा को ये कहते सुना है जो हाउस वर्क करती है कि वो अब फ्री है, उनको अब कोई भी काम नहीं करना है, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नेवर. आप ऐसा कभी भी नहीं सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज द नॉन स्टॉपेबल जॉब. ये एक ऐसा काम है जिसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती है. इनफैक्ट इफ वी एड अप द होमवर्क, हाउस वर्क and the works women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. तो जो औरतें बाहर भी काम करती हैं उनके पास तो समय ही नहीं है, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हें पूरी करनी ही है और बाहर भी कोई काम कर रही हैं. Below is some data from a special study done by the Central Statistical Organization of India 1998-99. See if you can fill in the ब्लैंक. क्या है देखिए, हरियाणा स्टेट की बात हो रही है. वुमेन को कितनी पेमेंट मिलती है पर वीक, वर्क आवर्स पर वीक, कितने घंटे वो काम करती हैं हरियाणा में और तमिलनाडु में? 23 आवर्स एंड 19 आवर्स. वुमेन अनपेड हाउस वर्क आवर्स पर वीक, जिनको पेमेंट मिलती है और जिनको पेमेंट नहीं मिलती है पर वीक, वो 30 घंटा एंड 35 मिनट 35 आवर्स काम करती हैं. वुमेन, टोटल वुमेन सारी ही सारी. मेंस पेड, मेन को इसी चीज की पेमेंट कितनी मिलती है? वर्क आवर्स पर वीक, जिनको पेमेंट दी जाती है, मेन जिनको पेमेंट दी जाती है 38 से 40 आवर्स पर वीक वो काम करते हैं, ठीक है. एंड मेन अनपेड, जिनको पेमेंट नहीं दी जाती है, लाइक हाउस वर्क पर वीक, घर पे वो कितना काम कर लेते हैं? 2 घंटा कर लेंगे पर वीक में, 4 घंटा. आप सोचिए आपके पापा कितना काम करते हैं घर की मेंटेनेंस में और मम्मा, उसके कंपेयर में आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस कंट्रीब्यूशन इज नील, इसको आप नील भी कह सकते हो. नाउ वुमेन्स वर्क एज एंड इनइक्वालिटी. वुमेन वर्क को इनइक्वालिटी लेवल पे क्यों रखा गया है? एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स हाउसहोल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट इंडिविजुअल और फैमिली मैटर. इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन men and women. It therefore has to be dealt with through actions not just at level of individual or the family but also by the government. As we know now, equality is an important principle of our constitution. The constitution says that being male or female should not become a reason for discriminations. In reality, inequality between the sexes exist. The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. For example, it recognizes that burden of children care, child care and housework falls on women and गर्ल्स, ठीक है. घर का भी ख्याल रखना, बच्चों का भी ख्याल रखना, और वो बाहर काम करती हैं तो वो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है वुमेन की. नाउ मेनी वुमेन लाइक सोनालीज मदर इन द स्टोरी, जो हमने ऊपर स्टोरी पढ़ी, इन द वुमेन इन तमिलनाडु एंड हरियाणा हु वर सर्वेड वर both inside and outside the home. This is often referred to as the double burden of women's work. इस तरह के काम को double burden कहा जाता है. This naturally had an impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of job and career they can have. The government has set up Anganwadis or child care centers in several villages in the country. The government has passed laws that make it mandatory for organizations that
have more than 30 women employees to provide creches facilities. The provision of creche जानते होंगे आप, helps many women to take up employment outside the home. It also makes it possible for more girls to attend schools. ठीक है, ये पुअर लेडीज अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़ के जाती हैं जहाँ पे इनके बच्चों की केयर होती है एंड दे कैन वर्क आउटसाइड. ठीक है. Now the chapter is over. Now the back exercise of the chapter. मैं इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1. Are the statements given alongside true or false? Support your answer with the use of examples. ठीक है, ये आपने चैप्टर रीड किया तो इसमें आपको बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हैं रिगार्डिंग दीज स्टेटमेंट्स. ए, all societies do not think similarly about the role that boys and girls play. क्या सब सोसाइटीज में ऐसा होता है? सब सोसाइटी यानी कि द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रू. इन मोस्ट सोसाइटीज डिस्क्रिमिनेशन इज मेड यानी बॉयज एंड गर्ल्स में को मतलब अलग अलग तरह से देखा जाता है बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, लाइक boys, they can play with the different games, they can get more high education, they are more free to move here and there, going like not in the way girls do. girls को लेके societies ज्यादा ही insecure होती हैं. वो रात में नहीं जा सकती कहीं पे भी, like boys can move, they cannot go alone, अकेले नहीं जा सकती to the lonely places. ठीक है. now the B, our society does not make distinction between boys and girls when they are growing up. क्या ये सच है? No. The answer is false. Our society always make distinction between boys and girls during their upbringing. जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ठीक है, आप खुद देखिए कि there is a lot of difference. इसके आंसर्स खुद आपके पास इनबिल्ट आपके अंदर ही होंगे because you all are either of gender. तो आपको ये आंसर खुद ही मिल रहे होंगे. ठीक है. वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क एट ऑल. बिल्कुल गलत है. फॉल्स. ऑल हाउस कोर्स आर परफॉर्म बाय वुमेन. वही सारे काम परफॉर्म करती हैं विच एंड ऑल दिस वर्क आर फिजिकली इनविजिबल. उनके ये काम जो फिजिकली वो करती हैं वो हमें दिखते नहीं हैं. पर आप खुद सोचिए आपकी मदर्स, जो आपका पूरा घर मेंटेन होता है आपकी एब्सेंस में, या जब आप स्कूल से आते हो या स्कूल जाने वाले होते हो, हर चीज प्रॉपर प्लेस पे मिलती है. स्कूल ड्रेस, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आपके इवन आपके होमवर्क, आपकी स्कूल फीस, आपके पूरे घर का मेंटेनेंस, ये कौन करता है? डेफिनेटली योर मदर्स. नाउ द डी आंसर इज द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. वुमेन आर होम मेकर्स एंड एंटायर फैमिली रन्स अराउंड देम. क्योंकि वो काम हमें दिखता नहीं है, पर हम ये नहीं कह सकते कि दैट इज ऑफ लेस वैल्यू. दैट इज ऑब्वियसली ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंस. Now question number 2. Housework is invisible and unpaid work. Definitely दिखता नहीं है और अनपेड होता है, क्योंकि हाउस वाइफ्स को जो घर मेंटेनेंस करने वाली मदर्स होती हैं, क्या उनको कुछ प्रोवाइड किया जाता है? नहीं. उनको कोई सैलरी, कोई इसके रिगार्डिंग इस वर्क को इनविजिबल समझा जाता है. हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग. हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग. डेफिनेटली. Now write in your own words what is meant by the term invisible, physically demanding and time consuming. Give one example of each based on the household task undertaken by women in your home. आपके घर में ये काम कौन करता है? जो दिखते नहीं है, फिजिकली डिमांडिंग, पूरे दिन इन्वॉल्व रखते हैं एंड टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. डेफिनेटली योर मदर. Let's find out the answer. The word invisible means the housework which is performed by the women at home throughout the day are not seen by us, as everyone expect them are out of home for their work. क्योंकि हम घर पे नहीं होते तो हमें ये काम दिखते नहीं है. These work are also physically demanding. क्यों? क्योंकि सोचिए घर की सफाई, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, प्रिपेयरिंग योर फूड एंड मेंटेनिंग द हाउस, ये सारे काम जो हमें दिखते नहीं है पर इसमें पूरे दिन इन्वॉल्व रहना पड़ता है. सो दीज वर्क आर कॉल्ड फिजिकली डिमांडिंग. दे डू ऑल दीज वर्क फिजिकली. ठीक है, ये जो घर के वुमेन ये सारे काम करती रहती हैं. ऑल दीज वर्क्स आर ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज वुमेन डू दीज ऑल फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. सुबह से लेकर रात तक घर में जो वुमेन है ये काम करती ही रहती हैं. सो दीज आर ऑल आर कॉल्ड टाइम कंज्यूमिंग. Now
Question number 3, make a list of toys and games that boy typically play and another for girls. If there is a difference between the two lists, can you think of some reasons why this is so? आप सोच सकते हो. Does this have any relationship to the roles children to have to play as adult? क्या इन गेम्स का कोई इंपॉर्टेंस है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं? They used to play these games. देखिए, both boys and girls from their upbringing plays different toys and games. Boys love to play cricket, football, whereas girls prefer playing games for housemaking or cooking, etc. I find a reason between these two choices that our society makes a clear partiality between the upbringing of boys and girls. यही एक रीज़न है कि दोनों को अलग तरह से अपब्रिंगिंग किया जाता है. ये माना जाता है कि एक हाउस मेकिंग का काम जो है वुमेन का ही काम है, वो गर्ल्स ही करेंगी. उनको चाइल्डहुड से ये चीज़ें आनी चाहिए, उनमें इनबिल्ट होनी चाहिए. इसीलिए लड़कियों को घर में खेलने के लिए इस तरह के गेम्स दिए जाते हैं, उनको बड़ा ही ऐसे किया जाता है. जब वो बड़ी होती हैं तो मदर्स उनको घर पे काम सिखाती हैं, कुकिंग सीखिए, थोड़ी हेल्प करिए, ठीक है. और बॉयज़ को उस तरह से डेवलप नहीं किया जाता है. उनसे यही एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो बाहर जाके क्या करेंगे, अर्निंग करेंगे, अपनी फैमिली को कैसे रन करेंगे. सो दिस इज अवर सोशल अपब्रिंगिंग. ओके. Now question number 4, if you have someone working as a domestic helper in your house, यदि कोई आपके घर पे काम करता है और लोकेलिटी या आपके आसपास काम करता है, टॉक टू हर एंड फाइंड आउट अ लिटिल बिट मोर अबाउट हर लाइफ. हु आर हर फैमिली मेम्बर्स. जो आपके घर पे मेड या कोई भी आपकी हेल्प करने आता है या घर के आसपास, उनसे बात करिए पर्सनली, उनकी फैमिली कंडीशन को जानिए, सिचुएशन को जानिए. वॉट इज वेयर इज हर होम, हाउ मेनी आवर्स डज शी वर्क्स, वो कितना घंटा काम करते हैं, हाउ मच डज शी गेट पेड. राइट अ स्मॉल स्टोरी बेस्ड ऑन दीज डिटेल्स. ये आप अपने आप करिए, डू इट योरसेल्फ, तो आपको ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी. ठीक है. नाउ इसमें ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी. व्हाट इज आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मतलब होता है एग्जैक्टली पहचान. जैसे मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज योर आइडेंटिटी, आपने अपनी क्या पहचान है, आपकी क्या पहचान है, तो यू विल से माई आइडेंटिटी इज, जो भी आप होगे, बॉय या गर्ल, एंड माई नेम इज दिस एंड माई फादर्स नेम इज दिस एंड आई स्टडी इन दिस क्लास. ठीक है. देखिए, आइडेंटिटी इज अ सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ हु वन इज. ठीक है, आप क्या हो, यही पहचान है आपकी. टिपिकली अ पर्सन कैन हैव सेवरल आइडेंटिटीज. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन बी अ गर्ल, अ सिस्टर एंड अ म्यूजिशियन. ठीक है. एक पर्सन की कई आइडेंटिटी हो सकती है. नाउ नेक्स्ट इज डबल बर्डन. व्हाट इज डबल बर्डन. ये लिटरली इसका मीनिंग मैं आपको समझाना चाहूँगी. ये उन वुमेन के बारे में बात की गई है जो कि हाउस होल्ड भी करती हैं और बाहर भी अर्निंग के लिए जाती हैं. Literally means a double load. This term is commonly used to describe the woman's work situation. It has emerged from a recognition that women typically labor both inside home, houseworker, and outside. Now, what is meant by caregiving? Caregiving refers to a range of tasks related to looking after and nutrition. Beside physically tasks, they also involve a strong emotional aspect. Caregiving जो आपको आपके घर में आपके पेरेंट्स देते हैं, उस टर्म को कहा जाता है केयर गिविंग. ना डी वैल्यूड. डी वैल्यू का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करना, बिल्कुल इग्नोर करना. लाइक when someone is not giving due recognition for a task or a job they have done, they can feel devalued. For example, if a boy has put in a lot of effort into making a special birthday gift for his friend and his friend does not say anything about this. ठीक है. तो समझिए आपने कोई स्पेशल काम किया जिसको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया. कोई ऐसा काम किया है या फैमिली में या फ्रेंड्स में या क्लास में जिसको उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती, उतनी उतनी अटेंशन नहीं मिलती है, तो उसे हम कहेंगे डी वैल्यू, यानी उस काम को वैल्यू नहीं दी गई. ठीक है. Hope all the question answers are well explained to you. Now I have taken out a few short of and very short answers type जो इस चैप्टर से इमर्ज होते हैं. Look this. Do you think our society distinguishes between the parenting of boys and girls? इसका आंसर है yes. ये पूरे चैप्टर में हमने यही देखा कि हमारी सोसाइटी डिस्टिंक्शन करती है. We from the right from our birth pass through, हम किससे गुजरते हैं, this type of variations made in our society from the very root level. ठीक है. किसी के लड़का हुआ है, आपके बेटा हुआ है, बेटी हुई, अच्छा आपकी बेटी हुई है, तो ये डिस्टिंक्शन हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे बर्थ के साथ ही शुरू हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द वर्क ऑफ हाउस होल्ड जॉब एंड ऑफिस टास्क ऑफ द वुमेन. मेरा क्या ओपिनियन है वो मैंने बताया है.
दैट जो हाउस होल्ड को जॉब करते हैं, आई थिंक दैट द वुमेन परफॉर्म बोथ household and office job perfectly if they are assigned with these together. No one other देन वुमेन डू इट बेटर। किसी को भी दिया जाए वुमेन से अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता कि वो घर भी संभालें और बाहर का काम भी करें, अर्निंग भी करें। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डबल बर्डन? डबल बर्डन ये टर्म उन लेडीज़ के लिए यूज़ हुआ है, उन वुमेन के लिए जो घर भी संभालती हैं और बाहर भी काम करती हैं। नाउ व्हाई डज अवर सोसाइटी डी वैल्यू द वर्क दैट इज़ परफॉर्म बाय द वुमेन एट होम? सोसाइटी क्यों डी वैल्यू करती है? क्योंकि हमारी सोसाइटी उस वर्क को देख नहीं पाती है। द वुमेन आर द होम मेकर, ठीक है ना, डू द वर्क थ्रू आउट द डे, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत दुर्भाग्य की बात है अवर सोसाइटी डी वैल्यू इट बिकॉज ऑल द वर्क दैट दे परफॉर्म लाइक क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ एक्सेट्रा आर इनविजिबल. They are also the one who educate their children and maintain the budget of family, running their family. और हर तरह से ये काम करती हैं जो दिखता ही नहीं है। इसीलिए हमारी सोसाइटी कहती है अब तुम घर पे क्या करती हो सारा दिन, तुम्हारे पास काम क्या है, तुम तो घर पे रहती हो। इस तरह से डिवैल्यू करती है। नाउ नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स बट द इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट बिटवीन द टू सेक्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा नहीं कहता है, वो दोनों को इक्वल मानता है, फिर भी हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्यों है? व्हाट रेमेडी गवर्नमेंट हैज़ गिवन? सरकार ने क्या रेमेडी निकाली है इसकी? देखिए, the government recognizes that the burden of child care and house maintenance falls on women and girl. The girl, if wants to take part in some official and social work, they get double burden of family and office. Therefore, आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स आर सेटअप। हमारी सरकार ने क्या किया है? आंगनबाड़ी एंड चाइल्ड केयर सेंटर सेटअप किए हैं। वो औरतें जो काम करना चाहती हैं वो रूरल एरियाज में अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के जाती हैं, जहाँ पे जैसे आज की डेट्स में जो वुमेन बाहर जाना चाहती हैं काम करने के लिए अपने बच्चों को क्रेच में, प्ले वे में छोड़ के जाती हैं, उसी तरह से सरकार ने आंगनबाड़ी एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाए हैं। Several laws are also made mandatory for the organization that have more than 30 women. जहाँ पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 30 वुमेन से ज़्यादा हैं वहाँ पे उन्हें क्रच बनाना ही पड़ेगा बच्चों की केयरिंग के लिए। तो these all are the question and answers I have explained here, and from in between chapters and the back exercise also. And if you have still, if you get some problem regarding these, you can write me comment in comment box और आप मुझसे explanation या कुछ भी पूछ सकते हो. Now that's all.